Hello aspirants, I welcome you all to another session of the Hindu Editorial Vocab Show for July the 12th. उम्मीद करता हूँ ये सेशंस आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद हो रहे होंगे. So before I start बता दूँ, for people who are new, you can get the PDFs of these sessions, the Hindu Vocab Show sessions, on my Telegram group, which is this is the ID. The link is there in the description box below. You can even scan this QR code to join my group and get access to all the PDFs of my session. These are the additional benefits when you join the Telegram group. Okay. So before I start, मैंने आपसे difference कल पूछा था. I asked you the difference between conscious and conscience. Difference between conscious and conscience. कई लोगों ने comment किया. I will take their names later. But what's the difference? सबसे पहले conscious जो हम कहते हैं, similar sounding words हैं, homophones, but there's a difference. Conscious, okay, this is actually an adjective which means awake, aware of what is happening around you and able to think. Okay, सचेत होना, होश में होना, that is conscious. सचेत या जागरूक, अपने होशो हवास में होना, होश में होना, that is conscious. Okay, knowing that what is happening around you, okay, to be aware of what is happening around you, that is conscious. Now sentence है, although he was in severe pain, he was conscious. Now generally आपने देखा होगा कोई बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पेन में होता है तो वो बेहोश हो जाता है, बिकॉज ही इज़ नॉट एबल टू एक्चुअली बेयर द पेन और टॉलरेट द पेन, ही बिकम्स अनकॉन्शियस. बट यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दर्द में होने के बावजूद वह होश में था. ओके, ऑल्दो ही वॉज इन सिवियर पेन, ही वॉज स्टिल कॉन्शियस, लाइक ही वॉज अवेयर. ओके, ही डिड नॉट बिकम अनकॉन्शियस, बेहोश नहीं हो गया. दैट्स द मीनिंग, बेहोश नहीं हुआ. अनकॉन्शियस मतलब बेहोश हो जाना. अनकॉन्शियस विल बी द एंटोनिम फॉर दिस. अनकॉन्शियस एक्चुअली मीन्स नॉट बी इन वंस सेंसेस और नॉट बी अवेयर. इन हिंदी बेहोश हो जाना. अब कॉन्शियंस जो है, विच इज़ एक्चुअली अ नाउन, इट मीन्स द पार्ट ऑफ यू दैट जजेस हाउ मॉरल योर ओन एक्शंस आर and makes you feel guilty about bad things that you have done or things you feel responsible for. हिंदी में ज़मीर कहते हैं. So conscience is nothing but the inner voice that tells you what is wrong and what is right. आपकी अंदर की आवाज़ जो आपको बताती है क्या सही है और क्या गलत है, that is conscience. Okay, conscience is a noun and conscious was an adjective. ऐसे भी समझ सकते हो, ENC से ख़त्म होने वाले नाउन्स होते हैं, OUS वाले एडजेक्टिव होते हैं. Now sentences, whenever in doubt, we should always listen to our conscience so that we don't feel guilty later. कभी भी किसी काम को करने में अगर आपको डाउट लग रहा है तो you always listen to your inner voice. You listen to your conscience, क्योंकि आपका conscience हमेशा सही चीज़ बताएगा. Okay? लेकिन अगर आप conscience का नहीं सुनते और आप कोई काम कर देते हो तो हो सकता है आपको बाद में पछताना पड़े, आपको बाद में गिल्टी फील करे आप. ओके, सो इट्स ऑलवेज बेटर टू लिसन टू कॉन्शियंस व्हेनेवर यू आर इन डाउट whether to do something or not. So listen to your conscience, your inner voice that tells you what is right and what is wrong. That's the basic difference. Now जो लोगों ने सही आंसर दिया, I could only accommodate 4 people, जनरली 5 लोगों का नाम बताता हूँ. युवराज ने बताया conscious means aware, awake, able to think, very good. Inner voice, inner sense of what is right or wrong, very good Yuvraj. अभय ने कहा conscious, being aware of yourself or the world around you, aware, awake, wide awake. Okay, sentence भी लिखा है, he is hurt but still conscious, very good. Similar sentence to what I explained. And awareness, conscience मतलब होता है awareness of morality in regard to one's behavior, नैतिकता का आपको सेंस होना, moral sense, स्टिल स्मॉल वॉइस, प्रिंसिपल्स, एथिक्स वगैरह. यस. बबलू ने कहा कॉन्शियस, अलर्ट, रेस्पॉन्सिव, रिएक्टिव. कॉन्शियस, मॉरल सेंस, स्टिल स्मॉल वॉइस, वैल्यूज. ओके, कॉन्शियस मीन्स सेंसेस, कॉन्शियस, इनर वॉइस, सोल. क्राफ्टी गर्ल रवीना ने बताया. सो गुड इनफ गाइस. आप वन लाइनर भी एक्सप्लेनेशन दो, काफ़ी है, नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल, बट मेंशन इट इन द कमेंट्स. सभी लोग मेंशन करें. जब आप लिखते हो ना मीनिंग्स, भले आप सर्च करके ही लिखो, गूगल करके ही लिखो, इट डजंट मैटर, बट व्हेन यू राइट द मीनिंग्स यू टेंड टू रिमेंबर दोज फॉर अ लॉन्गर टाइम. इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप कमेंट करके बताओ. जब लिखते हो तो ज़्यादा दिन तक याद रहता है.
चलो अब शुरू करते हैं आज का वोकैब शो का पहला वर्ड जो है नंबिंग. Numbing is actually an adjective which means used about an experience or situation, making you unable to feel or think anything or react in a normal way. ऐसा कोई numbing situation, एक numbing अवस्था या numbing incident, numbing situation तब होता है, एक ऐसा experience या situation जब आप सोचने या समझने की क्षमता आप में नहीं रहे. That is a numbing situation. जैसे अचानक से जनरली आई डोंट नो इवन इफ़ यू एक्चुअली मेट विथ स्मॉल एक्सीडेंट्स इन लाइफ, छोटा मोटा एक्सीडेंट भी कभी हुआ है तो अचानक से यू आर इन अ नंबिंग सिचुएशन, यू हैव अ नंबिंग एक्सपीरियंस. अचानक से सुन्न पड़ जाता है दिमाग, कुछ समझ में नहीं आता क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए. एमरजेंसी सिचुएशंस में ये होता है जनरली आम आदमी में, बट आर्मी वगैरह में इस चीज़ के लिए भी ट्रेनिंग दिया जाता है कि ऐसे सडन सिचुएशंस या सडन क्राइसिस या प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस में आपको कैसे सोचना समझना है, हाउ यू हैव टू बी कलेक्टेड, काम एंड कलेक्टेड, आपको सोचने की क्षमता होनी चाहिए. सो नंबिंग इज़ अ सिचुएशन और एक्सपीरियंस वेर यू आर नॉट एबल टू थिंक और रिएक्ट टू एनीथिंग. हिंदी में अनुभव या स्थिति के लिए यूज़ किया जाता है कुछ भी समझने या अनुभव करने या प्रतिक्रिया करने में असमर्थ होना, दैट इज़ नंबिंग, सुन्न पड़ जाना जिसे हम हिंदी में कहते हैं. एग्जाम्पल ऑफ नंबिंग इज द एक्सटेंट ऑफ वायलेंस इन द वेस्ट बंगाल पंचायत इलेक्शंस, दो नंबिंग वॉज नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड. कह रहा है वेस्ट बंगाल जो आपका इलेक्शंस हुआ था अभी पंचायत इलेक्शंस रिसेंटली, उसमें जो वायलेंस हुए, जितना वायलेंस देखा गया, इट वॉज अ नंबिंग, इट वॉज ऑलमोस्ट नंबिंग. दिमाग में समझ नहीं आ रहा था कि इतना वायलेंस आखिर क्यों हो रहा है, कुछ सोचने या समझने में हम समर्थ नहीं थे. दो नंबिंग, वो भले वो नंबिंग हो, ओके, सुन्न कर देने वाला हो इतने इंसिडेंट सुन के, लेकिन यह अनएक्सपेक्टेड नहीं था क्योंकि हर बार पंचायत इलेक्शंस में वेस्ट बंगाल में ये होता आ रहा है, वायलेंस तो होता आ रहा है. सो इट वॉज नंबिंग बट इट वॉज नॉट टोटली अनएक्सपेक्टेड. दैट्स द मीनिंग. नंबिंग के सिनोनिम्स हो सकते हैं बिटर, ब्लीक, इंटेंस और फ्रिजिड, एकदम सुन्न कर देने वाला, बिटर, ब्लीक, इंटेंस और फ्रिजिड. एंटोनिम्स हो सकते हैं टेम्परेट, प्लेजेंट और वार्म. ओके, जिसको सुन के आप एक अवस्था में रहते हो कुछ रिएक्शन देने की, दैट इज टेम्परेट, प्लेजेंट और वार्म. दीज आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड नंबिंग. अगला वर्ड जो है दैट इज मार, MAR. मार एक वर्ब है विच मीन्स टू हार्म और डैमेज समथिंग गुड. किसी अच्छी चीज़ को हार्म करना या डैमेज कर देना, दैट इज़ मार. हिंदी में भंग करना, रंग में भंग डालना बोलते हैं ना, दैट इज़ मार. किसी चीज़ को ख़राब कर देना, स्पॉइल कर देना. सेंटेंस था ऑपोजिशन पार्टीज हैड एक्सप्रेस देयर एप्रीहेंशन. एप्रीहेंशन मतलब उन्होंने अपने शक या डाउट्स, वह हेजिटेट कर रहे थे, उन्होंने अपने शक व्यक्त किए थे. दे एक्सप्रेस देयर डाउट्स that the elections would be marred by violence if proper steps were not taken. जो भी ऑपोजिशन पार्टीज़ थे वेस्ट बंगाल के, उन्होंने ये एक डाउट व्यक्त किया था कि इलेक्शंस जो हैं, इलेक्शंस के दौरान वायलेंस हो सकता है और वायलेंस के कारण वो इलेक्शंस का जो स्मूथ प्रक्रिया है उसमें खनन हो सकती है, उसको वो भंग हो सकता है इलेक्शंस का प्रक्रिया अगर सही कदम नहीं उठाए गए. तो ये ऑपोजिशन पार्टीज़ ने ये बात उठाई थी. दे हैड दीज अप्रेंशंस, दे हैड दीज डाउट्स. सो सिनोनिम्स ऑफ मार आर टार्निश, विटिएट, क्रिपल और स्पॉइल. खराब कर देना, टार्निश, विटिएट, क्रिपल, स्पॉइल, ये सब सिनोनिम्स हैं मार के. एंटोनिम्स कैन बी पैच, रेनोवेट, रिपेयर और मेंड. किसी चीज़ को ठीक कर देना, मरम्मत करके सही कर देना. पैच, रेनोवेट, रिपेयर एंड मेंड आर एंटोनिम्स फॉर द वर्ड. अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ इंटरवेंशन है. काफ़ी आसान वर्ड. इंटरवेंशन इज़ अ नाउन विच मीन्स द एक्शन ऑफ बिकमिंग इंटेंशनली इन्वॉल्व इन अ डिफ़िकल्ट सिचुएशन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव इट और प्रिवेंट इट फ्रॉम गेटिंग वर्स. जानबूझ के किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में घुसना, उसको बेटर करने के लिए, एक प्रकार से किसी चीज़ में जिसे हम कहते हैं ना समाधान, किसी चीज़ का समाधान करने के लिए आप उस चीज़ में इन्वॉल्व होते हो, दैट इज़ इंटरवेंशन. हिंदी में समझो तो हस्ताक्षेप करना, इस उम्मीद से कि आप उस चीज़ को ठीक कर दोगे, उसका समाधान निकाल दोगे. सो एग्जाम्पल ऑफ इंटरवेंशन इज डिस्पाइट सेवरल इंटरवेंशंस बाय द कैलकाटा हाई कोर्ट.
कैलकाटा हाईकोर्ट के द्वारा कई हस्ताक्षेप या दखल अंदाजी के बावजूद जिसने डायरेक्ट किया, उन्होंने हस्ताक्षेप किया और उसने कैलकाटा हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिए, दे डायरेक्टेड द डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस एट पोलिंग बूथ्स। सेंट्रल फोर्सेस जो है पोलिंग बूथ्स में उन्होंने निर्देश दिए थे कि पोलिंग बूथ्स में सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय किया जाए। इसके बावजूद द वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन फेल्ड ऑन सेवरल काउंट्स। ये निर्देश देने के बावजूद वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वह कई सारी चीज़ों में उस चीज़ का पालन नहीं कर पाई। दैट्स द मीनिंग। ओके, ये डिप्लॉयमेंट ऑफ सेंट्रल फोर्सेस उनको तैनात नहीं कर पाई हाई कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद। दैट्स द मीनिंग। सो इंटरवेंशन के सिनोनिम्स हो सकते हैं इंटरफेरेंस, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इंटरपोजिशन। इंटरपोजिशन, पोजिशन लिखा हुआ है, इंटरपोजिशन होना चाहिए था। लेट मी करेक्ट द स्पेलिंग। ठीक है, ओके। इंटरफेरेंस, मीडिएशन, आर्बिट्रेशन, इंटरपोजिशन, ये सारे सिनोनिम्स हैं। एंटोनिम्स कैन बी इग्नोर, अवॉइड, शन या ओवरलुक, नज़रअंदाज करना, किसी चीज़ पे ध्यान न देना। दिस कुड बी द एंटोनिम्स ऑफ द वर्ड इंटरवेंशन। अगला वर्ड जो लेके आया हूँ दैट इज़ हैपहज़ार्ड। हैपहज़ार्ड एक एडजेक्टिव है विच मीन्स विद नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, बैडली ऑर्गेनाइज्ड, गलत तरीके से किसी चीज़ को ऑर्गेनाइज किया गया हुआ, खराब तरीके से, दैट इज़ हैपहज़ार्ड। हिंदी में सुनियोजित नहीं, बेतरतीब या अव्यवस्थित, जो चीज़ प्रॉपर तरीके से व्यवस्थित नहीं हो या नियोजित नहीं हो, प्रॉपर ऑर्डर में नहीं हो, दैट इज़ हैपहज़ार्ड। सेंटेंस था द सेंट्रल फोर्सेज अराइव्ड लेट एंड वर डिप्लॉयड इन अ हैपहज़ार्ड मैनर। ओके, एक तो स्टेट इलेक्शन कमीशन ने सही से पालन नहीं किया, इसके बावजूद जो सेंट्रल फोर्सेज थे वो आए लेट इलेक्शन शुरू होने के बाद, और उनको तैनाती भी हैपहज़ार्ड मतलब एक डिसऑर्गेनाइज्ड वे में उन्हें तैनात कर दिया गया हर जगह, इसलिए वो भी वायलेंस बहुत सही ढंग से कंट्रोल नहीं कर पाए। सो हैपहज़ार्ड के सिनोनिम्स हो सकते हैं रैंडम, अनकोऑर्डिनेटेड, indiscriminate or disorderly. These could be the synonyms random, uncoordinated, indiscriminate। मैंने आपको पहले भी एक वर्ड डिस्कस किया है, याद होगा, which means random, planned तरीके से नहीं करना। disorderly, ये सारे synonyms हैं। antonyms will be methodical, planned, orderly और organized, ये सारे antonyms होंगे haphazard के। something which is done in an orderly manner, methodical, planned, orderly और organized। अगला वर्ड जो है दैट इज़ डोमिनेंस। डोमिनेंस इज़ बेसिकली अ नाउन विच मीन्स द क्वालिटी ऑफ बीइंग मोर इम्पॉर्टेंट, स्ट्रॉन्ग और सक्सेसफुल दैन एनीथिंग एल्स ऑफ द सेम टाइम। ओके, किसी उसी टाइप की चीज़ से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होना, स्ट्रॉन्ग होना, सक्सेसफुल होना, ओके, दैन एनीथिंग एल्स ऑफ द सेम टाइप, जिसे अथॉरिटेटिव भी कहते हैं, अथॉरिटेरियन, दैट इज़ डोमिनेंस। हिंदी में प्रभुत्व या प्राबल्य, प्रमुखता, दैट इज डोमिनेंस। सेंटेंस था द तृणमूल कांग्रेस डोमिनेंस ऑन द ग्राउंड विच रिमेन्ड अनक्वेश्चन्ड फॉर अ डिकेड इज नाउ फेसिंग रेजिस्टेंस इन सेवरल प्लेसेस। तृणमूल कांग्रेस का जो वर्चस्व था, एक तरह से प्रभुत्व था ग्राउंड पे, ओके, जो कई दशकों से कोई ऑपोजिशन पार्टीज उनको टक्कर नहीं दे पा रही थी, लेकिन अभी जो है वो कई सारे जगहों में उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है, कई ऑपोजिशंस पार्टीज़ के द्वारा रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है। ऐसा आर्टिकल मैंने शुरू में बताया था, याद करो, जिसमें बोला था कि कई पंचायत इलेक्शंस में ऑपोजिशन पार्टी लड़ती ही नहीं है, तो ऐसे ही हैंड्स डाउन तृणमूल कांग्रेस जीत जाती थी कई सारी जगहों में, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कई सारी जगहों में उनको रेजिस्टेंस फेस करना पड़ रहा है ऑपोजिशंस पार्टीज़ के द्वारा। तो डोमिनेंस के सिनोनिम्स हो सकते हैं सुप्रीमेसी, डोमिनियन, रेन और हेजमनी। दीज आर सिनोनिम्स फॉर द वर्ड डोमिनेंस, सुप्रीमेसी, डोमिनियन, रेन और हेजमनी। एंटोनिम्स इसके हो जाएंगे इम्पोर्टेंस, सबॉर्डिनेशन, मीडियोक्रिटी, इन्फीरियरिटी। ओके, नॉट हैविंग दैट पावर टू डू समथिंग, इम्पोर्टेंस, नॉट पावरफुल, सबॉर्डिनेशन, मीडियोक्रिटी, इन्फीरियरिटी, ये सारे हो जाएंगे एंटोनिम्स फॉर द वर्ड डोमिनेंस। Okay, so these were the 5 words of the day with synonyms and antonyms, with Hindi meanings and examples with sentences. आज का जो वर्ड मैं आपको डिफरेंस बताना है दैट इज़ डिस्क्रीट, DISCRETE, एंड डिस्क्रीट, DISCREET।
Mention in the comment boxes below. Comment your answers in the comment section. Will be discussed in the next vocab show session. In order to download the PDF, join this Telegram group. Link is there in the description box below. Click on the link and join. For people preparing for CDS, AFCAT and CAPF, we have several courses that have been launched for you in order to take you from basics to advanced level. ये सारे bilingual courses हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में होंगे. ओके, कोर्सेज परचेज करने के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं. यूज़ दिस कोड जोश टू अवेल एडिशनल डिस्काउंट एज वेल. ओके, and do attend the sessions of all our faculties. Timings are mentioned below. If you really want to improve your practice and accuracy, हमारे सभी के सेशंस रेगुलरली देखते चलिए, काफ़ी आपके लिए फ़ायदेमंद होगा. I come live at 6 p.m. daily, so watch my sessions in order to improve my English, and the timings of the rest of the faculties are also mentioned below. So that was it in this session, guys. Hope you enjoyed and learned from it. Do like, share and subscribe to the channel and click on the bell icon for notifications. मैं आपसे मिलूंगा अगले सेशन में. तब तक के लिए गुड बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय.